Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So students, today's topic is the food we eat, यानी कि जो खाना हम खाते हैं. Learning topics, sources of food, food from plants, food from animals, vegetarians, non-vegetarians and vegans, food groups, water. Food is one of our basic needs. We need food to survive. We eat food every day. Food gives us energy and helps us to grow. If we do not eat proper food, we become weak and unhealthy. Then we are not able to do work. तो खाना हमारे लिए एक बेसिक नीड है, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे. तो खाना खाना और हेल्दी खाना खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. We eat different types of food like vegetables, fruits, eggs, milk, meat, pulses, etc. तो हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं जैसे कि मिल्क, दालें, रोटी, सब्जी और फ्रूट्स. Sources of food. We get food from two sources, plants and animals. तो जिन चीज़ों से, जिन sources से हमें food मिलता है वो दो टाइप के होते हैं, एक animals और एक plants. Food from plants. Plants are main source of food. We get cereals, pulses, fruits and vegetables from plants. Look at the picture on next page. These are some parts of plants that we eat. Can you name these parts? Choose words from the help box. तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स है जिससे हमें खाना मिलता है वो है प्लांट्स. इससे हमें अलग अलग टाइप के सीरियल्स यानी कि अनाज मिलते हैं, दालें मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं और वेजिटेबल्स मिलते हैं. ऐसे ही कुछ प्लांट से निकले हुए फूड्स हैं जो अगले पेज पे आपको दिए गए हैं. हेल्प बॉक्स की मदद से आपको इनके नाम लिखने हैं. फूड फ्रॉम एनिमल्स. Meat, eggs and milk come from animals. We get milk from the buffalo, cow and goat. In deserts, people drink camel's milk, and in cold places like Ladakh, you can drink the yak's milk. Ladakhis also eat cheese and butter made from yak's milk. तो हमें जो खाना जानवरों से मिलता है उसका सबसे पहला एक एग्जाम्पल है दूध, जो हमें बफेलो से मिलता है, काऊ से भी मिलता है और काफ़ी ठंडी जगह जैसे कि लद्दाख है वहाँ पे आप याक से निकला हुआ दूध भी पी सकते हैं. जो लद्दाखीज होते हैं वो बटर भी खाते हैं जो याक के दूध से ही बना होता है. We get fish from the rivers and the seas. Sea animals such as crabs, lobsters, oysters and squids are also eaten. तो हमें दूध भी मिलता है, साथ ही साथ हमें अंडे, मीट, फिश, ये भी जो कुछ ऐसे समुद्री जीव होते हैं जैसे कि फिश हो गया, ऑयस्टर्स हो गए, क्रैब्स यानी कि केकड़े हो गए, स्क्विड्स हो गए, ये भी कंज्यूम करा जाता है. Vegetarians, non-vegetarians and vegans. People who do not eat meat or fish but eat vegetables and milk products are known as vegetarians. तो जो लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और दूध पीते हैं, उनको वेजिटेरियंस कहते हैं. Those who eat meat, fish, vegetables, milk and its products are called non-vegetarians. और जो लोग मीट, फिश और ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जानवरों से आती है उनको हम कहते हैं non-vegetarians. People who eat only vegetables and do not eat anything that comes from animals, including milk products like curd, are known as vegans. और वो लोग जो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, जानवरों से निकलने वाली कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, इंक्लूडिंग मिल्क, कर्ड एंड योगर्ट, उनको कहा जाता है वीगन. फूड ग्रुप्स. Food gives us energy, makes us grow and helps us to stay healthy. Different food items provide us different nutrients. Food items are put into different food groups according to how they help us. तो अलग अलग टाइप का खाना हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट वैल्यूज देता है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है. Energy giving foods. The food that gives us energy is called energy giving food. Carbohydrates and fats are energy giving food. Wheat, rice, sugar, potato, sweet potato, milk, oil and ghee are energy giving foods. ऐसे खाने जैसे कि आपका दूध हो गया, अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, जो आपको एनर्जी यानी कि ताकत देते हैं, इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स. Bodybuilding foods. The food that helps us to grow is called bodybuilding food. They contain proteins. Proteins are an essential nutrient as they help in our growth. Pulses, milk, fish,
eggs, cheese, etc. are body building foods which are good sources of proteins. और ऐसा खाना जिसे खाकर आपकी जो बॉडी है, जो अंदर की ऑर्गन्स हैं, वो बिल्ड होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, ऐसे खाने को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. इसमें अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, चीज हो गया, एग्स हो गए. ये सारे आपके होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स. Protective foods. The food that protect us from germs and illness is called protective food. Vitamins and minerals play a major role in keeping us healthy and free from diseases. Fruits, green leafy vegetables, etc. are protective foods. और ऐसा खाना जैसे कि आपकी हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए अलग अलग टाइप के, जो आपको इलनेस यानी कि बीमारियों से बचाते हैं, डिजीजेस से बचाते हैं, इनको कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स. Water. Almost all the food that we eat have some water content in them. Water is very important as it carries the essential nutrients to different parts of our body. It helps in the digestion of food and formation of blood. It also helps in excreting the waste materials from our body. So we must drink at least 6 to 8 glasses of water in a day. तो आप जो खाना खाते हैं उस खाने में, हर खाने में, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या कुछ भी हो, उसमें थोड़ा वाटर कंटेंट ज़रूरी होता है. ये आपकी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आपके जो खाना है उसको डाइजेस्ट करता है, पचाता है और आपके बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्वेट और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है. तो आपके लिए ज़रूरी है कि डेली कम से कम आप 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं. Key fact. Balanced diet is a diet which contains proper amount of energy giving food, body building food and protective food needed for proper functioning of our body. तो हमने जो 3 अलग अलग टाइप की कैटेगरीज देखी फूड की, एक थी हमारी प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड्स. तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें इन तीनों कैटेगरीज में से आपके पास थोड़ा थोड़ा खाना होता है ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और ढंग से फंक्शन करती रहे. सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं.